Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are going to discuss about 12th physics topic electromagnetic induction, subtopic motional electromotive force. Before discussing about the motional electromotive force, please subscribe my channel, like, share and subscribe. Now come to the point. Motional electromotive force. Out of this one, first we have to discuss about translation motion of a conductor. Translational motion of a conductor, that we have to study here. For that one, we'll consider about this diagram there. Now consider a rectangular frame ABCD of area L into X, that is situated in a constant magnetic field B vector. That means A, B, C, D, this is nothing but the rectangular frame. L is nothing but the length of AD, and AB, that is X. It is a variable. Remember this one. X, initially this BC, that is at this position there. That is a overlapping on AD because it is a movable wire is there. Now, as the wire BC of length L is moved out with a velocity v vector to increase x in the area of the loop ABCD also increases. Means जैसे ए वायर BC हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते with a velocity v vector there, at that time area of this rectangular frame that also increases. Now thus, the flux of B vector, that is a magnetic field, through the loop increases with time. Means जैसे जैसे ये हम लोग वायर या कंडक्टिंग वायर BC मूव करते वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे. Okay, and that is increasing with respect to time. Now flux through the frame ABCD is phi. ऐसे मान लो कि that is a flux through this wire, that is equal to phi. Now, what is the definition for magnetic flux? To the last lecture, we have discussed about the magnetic flux there. That is, phi is equal to magnetic field into area. General definition, we are well known that magnetic field or magnetic induction is nothing but the magnetic flux per unit area. तो यहाँ पे phi is equal हम लोगों को magnetic field into area. तो magnetic field कितना है? B. There is a B into area कितना है? L into X. तो phi is equal to हम लोगों को मिला B into L into X. Understood this one? Now, magnitude of induced EMF according to Faraday's law, हम लोगों को EMF जो इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या है? E is equal to d phi by dt. ओके, ये फैराडेज लॉ है. मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कंसीडर किया, सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं लिया यहाँ पे. ओके, तो फाई के जगह पे हम लोगों ने ये BLX सब्स्टिट्यूट किया, d by dt of BLX. Out of this one, magnetic field and L, these are constant quantities. यहाँ का magnetic field B है, ये length L, ये फिक्स है, वेरिएबल क्या है? AX. मतलब अभी ये वायर BC यहाँ पे था, यहाँ पे आगे गया, ये अपना पोजीशन धीरे धीरे ऐसे आगे शिफ्ट होते जाएगा विद वेलोसिटी v. तो इसीलिए वेरिएबल क्या है? x है. तो BL dx by dt. तो x यहाँ पे क्या आ रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वायर BC, या आप लोग बोल सकते हो कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस कंडक्टर. ओके, तो dx by dt that will become, that is a velocity. तो फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिल रहा है? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is equal to BLV. that is equation 1. Got it? Magnitude of induced EMF is equal to BLV. ये EMF कब इंड्यूस होगा? When any
conductor या conducting material wire is moved in a magnetic field with velocity v, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलेगा where v is the velocity of the wire, ये याद रखना है. Any conductor is moved in a magnetic field at that time this much EMF must be induced there. तो ये EMF induce होगा, ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया, ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है. ओके, नेक्स्ट देखोगे. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द अबाउट रिजल्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन द चार्जेस इन द मूविंग वायर बीसी. यही रिजल्ट हम लोग अलग मेथड से करने वाले. ओके, तो अभी एक हम लोग फैराडेज लॉ से हम लोगों को मिला ही है, अब हम लोग अलग मेथड से करेंगे. दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन द वायर बीसी. देयर नाउ a charge q which is carried along by the moving wire BC experiences a Lorentz force. That means when any charge is moving in a magnetic field, the force experienced, that is a force given by the scientist Lorentz. That's why it is also known as a Lorentz force. And here I've given that F is equal to Q V vector cross B vector. This is the formula for Lorentz force. ये Lorentz force का formula है. Okay, तो F vector is equal to Q V vector cross B vector. A cross product because of these are nothing but the two vector quantities are there, left hand side and right hand side. Right hand side there is a left hand side, there is a force is a vector quantity. That's why here is a cross product. That you have to remember. Okay. Now this force is perpendicular to both V vector and B vector. Hence it is parallel to BC. अभी ये जो फोर्स है ये कैसे होगा? इट इज अ परपेंडिकुलर टू द v vector and b vector. Okay, as we are well known that the direction of this force that is given by Fleming's left hand rule. Okay, hence by using that one we are getting the direction, and the direction is parallel to BC. Okay, now when the charge q moves a distance L along the wire, the work done. अब ये फोर्स है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द लॉरेंट्ज फोर्स इज. तो ये जो चार्ज यदि L डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलोंग द वायर, वायर का लेंथ L था इसलिए L डिस्टेंस यदि ट्रेवल करेगा तो कितना फोर्स होगा? एज वी आर वेल नोन दैट वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट L हो गया, फोर्स इज नथिंग बट द लॉरेंट्ज फोर्स. तो ये फोर्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, क्यू वी बी क्रॉस प्रोडक्ट है तो वी बी साइन थीटा, दैट इज अ फॉर्मूला देयर. तो क्यू वी बी साइन थीटा इंटू ए एल यहाँ पे आएगा. तो क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एल, दैट इज नथिंग बट द वर्क डन, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर. इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा है. ओके, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट दैट वी आर वेल नोन. इसी से हम लोगों को ये एंगल थीटा मिलेगा. गॉट इट? अब देखो, द EMF जनरेटेड इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो हम लोगों को डेफिनेशन मालूम है EMF का. EMF इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. गॉट इट? तो यदि ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा? देखो, E इज इक्वल टू W अपॉन Q. ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया है? क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एल. तो यहाँ पे क्यू कट होने वाला है तो हम लोगों को रहेगा कितना? देखो, वी बी साइन थीटा इंटू एल. दिस मच EMF इज जनरेटेड देयर. E इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा इंटू एल. अब ये इस फॉर्मूले से EMF इंड्यूस किसके ऊपर डिपेंड है? दैट डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा. बाकी ये क्वांटिटीज कांस्टेंट हो गए भी. वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज कांस्टेंट. मींस ये जितना एंगल मैक्सिमम होगा तो EMF मैक्सिमम होगा. एंगल मिनिमम है तो EMF मिनिमम है. एंगल मींस sin थीटा का वैल्यू. ओके, तो अब देखो हम लोग कंसीडर करते हैं मैक्सिमम कंडीशन. फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF sin थीटा इज इक्वल टू 1. कब ये होता है 1? दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. That means when V vector and B vector are perpendicular to each other, at that time we are getting theta is equal to 90 degree and sin 90 is equal to 1. Okay, तो ये यदि वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो हम लोगों को E maximum is equal to BLV मिलेगा. Got it? E maximum is equal to BLV, which is similar as like a Faraday's law. Okay,
वहां पे भी हम लोगों को E इज इक्वल टू बी एल भी मिला, यहाँ पे भी हम लोगों को E इज इक्वल टू बी एल भी मिला. दिस इज द सेम रिजल्ट एज ऑब्टेन इन इक्वेशन 1 derived from the rate of change of magnetic flux, that is Faraday's law there. Understood this one? तो हम लोगों को ये टर्म याद रखना है, ठीक है. मतलब दोनों फॉर्मूले से, दोनों मेथड से हम लोगों को मैक्सिमम ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी इतना मिलेगा व्हेन देयर इज अ ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये अच्छे से याद रखो, ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन. अब ये तो हम लोगों ने लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए लिया था. अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है, मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार. अब यहाँ पे हम लोगों को रोटेशनल मोशन कंसीडर करना है कंडक्टर का. फॉर दैट वन कंसीडर दिस डायग्राम. ओके, दैट इज एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लस साइन इंडिकेट किया हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है. इन दैट वन वी हैव प्लेस दैट इज दिस इज नथिंग बट द वन conducting bar. Now, a rotating bar is different in nature from the sliding bar. Yeah, bar is having linear motion. As shown in the figure 12.6, that is ये बुक का 12.6 है, तो बुक का ये डायग्राम एज इट इज कंसीडर लिखे लिया है मैंने यहाँ पे. एज शोन इन द फिगर 12.6, कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट dr of the bar at a distance r फ्रॉम द पाइवोट. जो फिक्स पोजीशन है रोटेशन होने के लिए, ये यहाँ पे फिक्स पोजीशन है और ये ऐसे हम लोगों को घूमने वाला है, रोटेट होने वाला है, ठीक है. तो आउट ऑफ दिस वन, ये बार में से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे डी आर लेंथ का दिख रहा है. देखो ये डॉट लेजर डॉट बीम आप लोगों को दिख रहा है, दैट इज डी आर. ये एक स्मॉल एलिमेंट सेगमेंट हम लोगों ने ले लिया है. Okay, so small segment, when it is rotating at that time, we will consider that the small segment is performing linear motion. Total bar is performing rotational motion, but this segment is performing linear motion. That you have to remember there. By applying the same formula here, we are considering about the next one. It is a short length dr of the conductor which is moving with velocity v in a magnetic field b and has an induced EMF generated in it like a sliding bar. Okay, sliding bar मतलब that is performing linear motion. तो linear motion करते समय यहाँ पे इसमें EMF generate होगा. सिर्फ इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. तो by imaging all such segments as a sources of EMF, we can find that all these segments are in series and therefore the EMF of individual segment will be added. मतलब क्या है, ये एक छोटा सेगमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया, इसके जैसे हम लोग और भी सेगमेंट कंसीडर कर सकते हैं. मतलब क्या है, ये यहाँ पे एक सेगमेंट हुआ, मैंने यहाँ पे दूसरा सेगमेंट लिया, ये तीसरा सेगमेंट लिया, ये चौथा सेगमेंट लिया, ऐसे हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं. एंड वी कैन एबल टू कंसिडर दैट ऑल ऑफ देम आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ये सभी के सभी इस डायरेक्शन में मूव हो रहे. गॉट इट. सबका डायरेक्शन ये लीनियर मोशन है. दैट मींस ऑल ऑफ देम आर परफॉर्मिंग या दे आर मूविंग, या आप लोग बोल सकते हो दैट इज स्लाइडिंग, लीनियर परफॉर्मिंग लीनियर मोशन. ये छोटे छोटे सेगमेंट्स ले लिए. ओके, तो हर एक सेगमेंट का हम लोगों ने ईएमएफ कैलकुलेट किया. तो अब देखो ये जो सेगमेंट्स है, ये सभी सेगमेंट्स एक दूसरे को कैसे, इसके बाद ए कनेक्टेड है, इसको ए कनेक्टेड है, इसको ए कनेक्टेड है. दैट मींस दे आर इन अ सीरीज, दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन. एक ही सीरीज में हम लोगों को ये कनेक्ट हो रहा है. Got it? The current passing through this one, it is same. That's why the EMF is added here. तो यहाँ पे EMF add होएगा. Okay, वही यहाँ पे आप लोगों को बताया. We can find that all these segments, ये जो segments है, all these segments are in series and therefore the EMFs of individual segment, हर एक segment का EMF यहाँ पे add होते जाएगा. ओके, तो टोटल हम लोगों को जो मिलने वाला है ये एडिशन होते जाएगा. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. तो ये यहाँ पे मैं रिमूव करता, समझने के लिए निकाला था. गॉट इट. ओके ना. तो अब देखो कितना ईएमएफ ऐड होने के बाद क्या होने वाला. देखो नाउ we know that induced EMF DE, ये स्मॉल लेटर E निकाला हम लोगों ने, क्योंकि ये एक स्मॉल सेगमेंट के लिए निकाल रहे. इन द स्मॉल सेगमेंट DR बी द ऑफ द रोटेटिंग कंडक्टर इज,
तो हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू BLV, ठीक है, या BVL, L मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है DR, यहाँ पे स्मॉल कंडक्टर है, सेगमेंट लिया हम लोगों ने, तो DR, ये जो EMF है स्मॉल है इसलिए यहाँ पे ले लिया DE, दैट इज अ स्मॉल टर्म। ओके, नाउ अब देखो, टोटल इंड्यूस्ड EMF इन रोटेटिंग रॉड इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट का जो भी EMF है उसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने ले लिया थ्रू आउट द बार, then we are getting that is the total induced EMF in the rotating rod, then E is equal to integration of DE, DE का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो BVDR। ओके, तो यहाँ पे टोटल बार ये रोटेट हो रहा है, got it, and that's why we can able to consider in this way that, तो यहाँ पे हम लोगों को v का कन्वर्जन एंगुलर वेलोसिटी में करना है, ये लीनियर वेलोसिटी था, इसको यहाँ पे हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्जन करना है, तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ पे r ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया v के जगह पे, ये dr एज इट इज, b एज इट इज, तो इंटीग्रेशन b ओमेगा r dr, यहाँ पे ओमेगा क्या है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बार, r क्या है, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, जो यहाँ पे लेंथ ऑफ द रॉड आएगा, ओके, लेंथ ऑफ द बार दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन देयर, तो b ओमेगा r into dr देयर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे b एंड ओमेगा दीज आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, तो इंटीग्रेशन हम लोग कहां से कहां तक लेंगे, 0 to L, दैट इज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देयर, ठीक है, तो 0 to L r into dr। अब यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन यूज करना है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx, that is nothing but the x raised to n plus 1 upon n plus 1। By using this formula, if we able to solve this one, we are getting it is L square by 2। Okay, r is replaced by upper limit and lower limit there, तो हम लोगों को ये यहाँ पे L square by 2 मिलेगा। Okay, by using this formula, integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1, r raised to 1 है 1 plus 1 upon 1 plus 1, n की जगह पे 1 लिया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे L square by 2 मिलेगा, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है देखो, E is equal to half B omega L square, this much EMF is generated if a bar is rotating in a magnetic field, got it। यदि ये स्लाइड करता है तो हम लोगों को मालूम है कितना EMF जनरेट होता है, BLV, ठीक है, व्हेन इट इज स्लाइडिंग या व्हेन इट इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन, और यदि ये रोटेशनल मोशन करता है तो हम लोगों को ये फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस। तो आज जो हम लोगों ने कंसिडर किया, आज जो डिस्कस किया उसका जस्ट रिवीजन, हम लोगों ने 2 ही पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है, मोशनल इफेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें से 2 मोशन कंसिडर किए, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो फॉर ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ कंडक्टर, दैट इज अ लीनियर मोशन ऑफ अ कंडक्टर, क्या फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू BLV। ओके, एंड फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या फॉर्मूला हम लोगों का आया देखो, फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या फॉर्मूला है, E is equal to half B omega L square। ओके, इसमें जो क्वांटिटीज आ रही है वो देखो, यहाँ पे हम लोगों को ये आ रहा है V, दैट इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी, B और L कॉमन है दोनों जगह पे, यहाँ पे है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, दैट इज द मेन डिफरेंस देयर, गॉट इट, ये मेन डिफरेंस है V और ओमेगा, यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन है, यहाँ पे रोटेशनल मोशन है, गॉट इट, समझ में आ रहा है। तो ये 2 ही पॉइंट आज हम लोगों आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए, वो अच्छे से समझना है आपको। ओके, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये फॉर्मूले हम लोगों को लगने वाले, गॉट इट। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज रिवाइज एंड यूज द टेक्स्ट बुक, थैंक यू।